that we are discussing is classical approach, cardinal approach, that is marginal utility analysis in consumer demand analysis. While discussing the syllabus, we have discussed that there are three types of theories within consumer demand analysis. कि consumers demand को क्या-क्या चीजें determine करती हैं, वो तीन तरीके की theories हम करेंगे microeconomics में. First is this marginal utility analysis, then or it is termed as cardinal approach. Then we have indifference curve approach, which is termed as ordinal approach, and then we have revealed preference theory. So let's start with marginal utility analysis. There are some facts. It is the oldest theory of demand. MCQ में आ जाता है, which is the oldest theory of demand, so we know it is marginal utility analysis. Second is that it helps in the derivation of law of demand. Helps मतलब जो हम law of demand generally पढ़ते हैं ना, starting में 11th 12th में ही पढ़ा होगा, graduation में भी, that there is an inverse relationship between price and demand. That basic law of demand is determined with the help of marginal utility analysis, and we'll see how. Then the final shape for this entire theory is given by Marshall, and it is based on the approach of cardinal. Cardinal actually means कि हमारी utility. Utility मतलब satisfaction. ये measurable है. इसको हम measure कर सकते हैं, quantify कर सकते हैं. Second word यहाँ पे use हुआ है additive. Additive का मतलब है कि अगर suppose हम दो commodities को अभी consume कर रहे हैं, से अगर हम एक कैफे में जाते हैं, हमने एक कैपेचिनो लिया, साथ में खाने के लिए सपोज एक पेस्ट्री ली, तो अगर हमारे ये दो गुड्स हमने कंज्यूम किए, तो एक सपोज कॉफी से हमारी 20 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन हुई और हमारा एक पेस्ट्री से हमारी से 10 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन हुई. तो इन दोनों सेटिस्फेक्शन को, इन दोनों यूटिलिटीज को हम ऐड कर सकते हैं एंड वी कैन डिराइव कि हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी है. So these are certain facts associated with this marginal utility analysis. Let's understand utility हमें समझ आ गया. Let's also understand what do we mean by marginal. Marginal utility का मतलब है कि अगर हम एक additional unit consume करते हैं हमारे किसी भी commodity की, तो हमें फिर कितना extra units of satisfaction मिलता है उस consumption से. That is marginal utility. Okay, अभी के लिए इतना समझ लो. जैसे जैसे theory में proceed करेंगे, we'll discuss more in depth that what do we actually mean by marginal utility. Now again, as in economics, in every theory we have some assumptions, then we discuss the theory, and then we discuss the criticism. Let's start with the assumptions. Today in today's video we'll just focus our attention towards major assumptions of marginal utility analysis. First assumption says rationality. Rationality means कि consumers बहुत rational है अपने behavior में. Rational मतलब कंज्यूमर्स को का जो एम है कि उनको अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना है, उनको अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, वो रैशनल बिहेवियर है. ठीक है, सो हम बोल रहे हैं कंज्यूमर एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज यूटिलिटी सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड ऑन हिम. अब हमारी तो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हम कर सकते हैं, बट हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है जिनके विद इन हमें कंज्यूम करना होता है. दे आर इन द फॉर्म ऑफ आवर इनकम. हमारी इनकम कितनी है और जो गुड हम कंज्यूम करना चाह रहे हैं या जिस गुड के कंजम्पशन से हमारी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होती है उसका प्राइस कितना है. तो सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट कंज्यूमर कोशिश करता है कि उसको अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है. सिमिलरली जब हम प्रोडक्शन थ्योरी करेंगे तो उसमें रैशनल बिहेवियर क्या हो जाएगा कि प्रोड्यूसर कोशिश करेगा कि उसको अपने आउटपुट, उसको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए या सब्जेक्ट टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो कंज्यूमर्स का रैशनल बिहेवियर है मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज यूटिलिटी. सेकंड इज कार्डिनल यूटिलिटी assumption. What do we mean by cardinal? अभी हमने ऊपर एग्जांपल डिस्कस किया कॉफी का एंड कैपेचिनो का एंड से पेस्ट्री का. तो यूटिलिटी हमारी कोई भी गुड हम कंज्यूम करें उसको हम मेजर कर सकते हैं, और सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है मेजर करने का? मनी. ठीक है, convenient measure of money. The utility is measured by the monetary units that the consumer is prepared to pay for another unit of commodity. अगर हम अपनी सपोज कॉफी के लिए 10 रुपीज दे सकते हैं, ठीक है, और वहीं अगर हम सपोज टी के लिए हम सिर्फ 5 रुपीज ही देना चाहते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन कॉफी से डिराइव होती है वो टी से इतनी डिराइव नहीं होती जब भी हम टी के लिए कम पैसे देना चाहते हैं एज कंपेयर्ड टू कॉफी.
इसीलिए हम बोलते हैं कि कितना पैसा हम देना चाहते हैं, कितनी हमारी विलिंगनेस टू पे है, वो भी हमारा डिटरमिन करती है कि हमारी यूटिलिटी उससे कितनी डिराइव हो रही है। थर्ड कॉन्सेप्ट इज, और थर्ड assumption इज diminishing marginal utility. What do we mean by diminishing marginal utility? इसका ये मतलब है, सपोज हमने फर्स्ट कॉफी पी, ठीक है, फर्स्ट कॉफी पीने से सपोज हमारा 30 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव हुआ, फिर हमने सेकेंड कॉफी पी, सेकेंड कॉफी पीने से हमारा से 25, क्योंकि एक बार तो पी ली ना, उसके बाद फिर हमने थर्ड प्रोडक्ट थर्ड लिया, यूनिट लिया 15। तो जैसे जैसे हम अपने एक्स्ट्रा यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं, जितना हम एक्स्ट्रा यूटिलिटी डिराइव कर रहे हैं वो डिक्लाइन होता जाता है, इसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। So the utility gained from successive units of a commodity diminishes. In other words, the marginal utility of a commodity decreases as the consumer acquires large quantities of it, and this is the axiom of diminishing marginal utility. Fourth is utilities are independent. Utilities are independent मतलब कि अगर हम एक commodity को consume कर रहे हैं, suppose हमने यहाँ पे coffee consume की, इसकी utility 20 थी, separate, it is not dependent upon pastry, और इसकी utility, pastry की utility 10 थी, तो हम बोल रहे हैं utilities independent होती है, the utility of one commodity does not affect the utility of the other commodity. ये assumptions है, ठीक है. But suppose if we are having parathas, we would like to have it either with curd or we would like to have it with lassi. तो उससे क्या होगा, combined utility हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है. So जितना हमारी satisfaction derive हो रही है, हम साथ में क्या चीज ले रहे हैं, उससे effect होता है, but still पराठों की अपनी utility है and लस्सी या कर्ड की अपनी utility है. Utilities are independent. It also means that the satisfaction derived from the consumption of the good is the function of that good alone, and it is not affected by the consumption of the other good. ये हमारी 4 assumptions थी. अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमारी utilities independent है, तो मतलब total utility is a function of first good से हमें कितनी utility मिल रही है, X2 सेकेंड गुड से हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है, अगर हम n गुड्स कंज्यूम करते हैं तो nth गुड से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, ये सारे हमारे कंबाइन करके टोटल यूटिलिटी फंक्शन हम डिराइव कर सकते हैं, टोटल यूटिलिटी मेजरेबल है. सो वी से दैट इफ देयर आर n commodities in the bundle with quantities x1 x2 till xn, then this equation represents the total utility. Fifth assumption that we are taking is introspective method. इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, हमारे प्रीवियस कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, प्रीवियस कुछ इवेंट्स होते हैं, जिनके बेसिस पे हम अभी के टाइम पीरियड के लिए कुछ कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, कुछ जज कर सकते हैं. So it says introspection is the ability of the observer to reconstruct the events which go on in the mind of another person with the help of self-observation. हमारे लिए ये applicable है, तो ये उनके लिए भी applicable होगा. The form of comprehension may be just about work or intuition, just a matter of work or intuition or the result of long lasting experience. Because अगर वैसे देखा जाए तो हर इंडिविजुअल सब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव क्या हो सकता है, अभी हमारा कुछ खाने का मन कर रहा है जिससे अभी हमारी यूटिलिटी बहुत ज्यादा आ सकती है, बट कल वही चीज हमारा मन नहीं करेगा, हमें उतनी यूटिलिटी उससे नहीं मिलेगी. बट स्टिल ब्रॉडली हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस एक गुड के साथ हमारा ऐसा रहा है तो हो सकता है सामने वाले का भी ऐसा ही रहेगा. So this is a matter of introspection. Again, this is assumption we are taking. It is not necessary that the assumptions will always be true, but in order to explain the theory, we need to take some assumptions. जैसे पहले भी मैंने बोला है, साइंस में हम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट इकोनॉमिक्स में वो पॉसिबल नहीं होता. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल वेरिएबल्स दैट प्ले अराउंड, मल्टीपल मार्केट्स आर देयर. इसीलिए हम एक चीज को स्टडी करने के लिए बाकी चीजों को उस टाइम पीरियड के लिए कांस्टेंट ले लेते हैं या कुछ assumptions क्रिएट कर लेते हैं. Last assumption of the marginal utility theory is constant marginal utility of money. This means, see, money से हम measure कर रहे हैं ना कि हमारी utility कितनी derive होती है. अब अगर हमारा कोई भी एक हमने measurement criteria लिया हुआ है, तो वो measurement criteria at least हमारा constant तो होना चाहिए. अगर वो measurement criteria ही change होता रहेगा, तो हम
प्रॉपर मेजरमेंट या प्रॉपर कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, जितना हम यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हैं विद मनी, वो कांस्टेंट रहता है। So we say this assumption is important because marginal utility of a commodity is measured in terms of money. And it is assumed that marginal utility of a commodity varies with the quantity of the commodity purchased. The marginal utility of money remains same even as the quantity of goods purchased varied, क्योंकि हम कितने ही goods purchase कर ले, हम money को use करके ही करेंगे। So marginal utility of money हमारा constant रहता है। You might think ऐसा तो नेसेसरी नहीं है, मार्जिनल अगर हमारे पास बहुत पैसा है तो हो सकता है हमारे लिए 100 रुपीज की वैल्यू इतनी ना हो, बट इफ वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी तो 100 रुपीज की भी बहुत वैल्यू होगी। सो ये हमारा क्रिटिसिज्म में आ जाएगा, बट हमने एज्यूम किया है क्योंकि हम ये बोल रहे हैं यूटिलिटी मेजरेबल है, यूटिलिटी को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, तो इसलिए, और हम मनी यूज कर रहे हैं मेजर करने के लिए, तो हमने वो मनी को कांस्टेंट एज्यूम किया है। So these were the assumptions of marginal utility analysis. In the next video, we will discuss this theory. We will discuss the concept of total utility and marginal utility. We will take example of diagrams in order to explain this. Of tabular, we will also explain tabular representation of total utility and marginal utility. That will come up in the next videos. All the best for your preparation. Take care.